آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ یہ ہے کہ جو قلندر شاہ قبرستان ہے وہ بہت قدیم قبرستان ہے، یہاں تقریباً 200 سال سے وہاں پر جو ہے خبریں موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری مرتبہ جو لینڈ گرابرز ہیں ان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ اس اراضی کو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو جو ہے گریب کیا جائے، ہڑپ لیا جائے۔ یہ قلندر شاہ قبرستان بہت پرانا قبرستان ہے، تقریباً 300 سالہ قبرستان ہے، قدیم قبرستان ہے، جس میں ریونیو ریکارڈ کے مطابق یہ سروے نمبر 764 763 میں بھی مسلم کے قبور ہے بول کے لکھا ہوا ہے، 54-55 کے ریکارڈ میں بھی آج بھی موجود میں خبراں ہیں یا انڈر یوز میں ہیں، اور اس کے تعلق سے کئی لوگ اس پہ قبضہ کرنے کی نظر سے JCB چلائے، سوپ چلائے، تو لوکل کے مسلم مائنارٹیز اور لوکل قلندر شاہ کمیٹی کے سیکریٹری جناب انور پاشا صاحب، ہمارے محکمے لیڈر سوپ تقریباً لوگ اس میں ساتھ دیے، اور اس کو کسی کو بھی انکروچمنٹ نہیں ہوئے، سرکار کریں گے۔ بہت سارے صاحب خیر صاحب اور جو کافی یہاں کے مشہور لوگ ہیں، ان کے جو ہے وہاں پہ جو ہے آب و اجداد کی خبریں آج بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ وہاں پر ہر سال وہاں پر زیارت وغیرہ کرتے ہیں، حق پاشی بھی کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے خلاف تمام ہی لوگوں کو بلا تفریق مسلکی تمام لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، اور اس کے ایسا جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک قانونی چارہ جوئی کی بات ہے تو آلریڈی وہاں پر جو کیسز ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے اس کی بھی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ سٹی انڈیا نیوز مسلمانوں کے مسائل کو، اور خاص کر یہ ہمارے قبرستان جو قدیم قبرستان ہے، عوام میں اجاگر کر کے حکومت کی نظر میں لا کر حکومت سے ایسے کہ اس کے مطالبات کو منوانے کی ہمیشہ کوشش کی، لہذا میں اس چینل والوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہر کے سب سے قدیم قلندر شاہ قبرستان کے پاس موجود ہوں۔ اس قبرستان میں شہر کے بانیان مدفن ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں رجسٹری آفس کی جانب سے اس قبرستان کی اراضی پر باضابطہ سروے نمبر پر پلاٹس رجسٹر کیے جا رہے ہیں، اور محکمہ بلدیہ کی جانب سے اس قبرستان کے سروے نمبر پر تعمیرات کی اجازت بھی دی جا رہی ہے، جبکہ یہ اعلانیہ پتہ ہے تمام محکمہ جات کو کہ یہ ایک وقف لینڈ ہے، ایک وقف اراضی ہے جس میں قبرستان موجود ہے۔ باوجود اس کے یہاں کے مختلف محکمہ جات پوری غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہاں کی اراضی پر رجسٹری کر رہے ہیں، اور یہاں پر مکانات تعمیر کرنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں۔ علاوہ اس کے محکمے تحصیل میں بھی، یعنی کہ محکمہ ریونیو میں بھی، تحصیلدار محکمہ کے دفتر میں بھی اس کے ریکارڈ میں خرد برد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ الزام قبرستان کی بقا کے لیے جدوجہد کرنے والی کمیٹی کے قائدین لگا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح خاموشی اختیار کی گئی تو اس قبرستان کی تمام اراضی کو، جو خبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسمار کرتے ہوئے سے ایک پٹا اراضی قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور قبضہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں قبرستان کی بقا کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں ان قائدین کے پاس، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے حصے میں بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبریں نظر آ رہی ہیں، اور ادھر سیدھی جانب بھی یہاں پر خبریں، دائیں جانب بھی میرے خبریں موجود ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے سٹی انڈیا نیوز پر اس قبرستان کے متعلق خصوصی پروگرام پیش کیا تھا، جس میں ہم نے قدیم خبروں کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس قبرستان میں یہ ایک قبرستان ہے، اور یہاں یہ جو سو پٹا اراضی کہہ کر کچھ لوگ یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کو ہم نے پوری طریقے سے عوام کے سامنے رکھا تھا، لیکن پھر ایک بار ہم
सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से इस कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे के नाकाम कोशिशों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अभी उन खादिम से मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हकीकत क्या है। शहर महबूब नगर जो कि आज चारों तरफ 10 किलोमीटर पर फैला हुआ है, एक वक्त था कि इब्तिदा में यह शहर सिर्फ मोमिनपुरा और किसी हद तक रामाया बौली तक हुआ करता था। उस वक्त मुसलमानों की मैयतों की तदफीन के लिए एक ही कब्रिस्तान था और वो था कलंदर शाह कब्रिस्तान, जो बरहना बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से आधा किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 200 साल कदीम यह कब्रिस्तान जुमला 7.5 एकड़ अराज़ी पर फैला हुआ है और जिसमें इस शहर के उस वक्त के मतमूल और मकबूल तरीन अफराद और उनके लवाहिकीन मदफन हैं, जैसा कि सैयद वजीहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह और साबिक़ रियासती वज़ीर सेहत इब्राहिम अली अंसारी, जिन्होंने हल्का असम्बली महबूब नगर की 11 साल नुमाइंदगी की, अपने अजदाद के साथ मदफन हैं। इस कब्रिस्तान में कई क़ब्रों को अब तक मिस्मार कर दिया गया है और उसकी अराज़ी पर नाजायज़ तौर पर मकानात भी तामीर कर दिए गए हैं। आज भी उसके एक हिस्से को, जो कि सर्वे नंबर 763 मौजूद है, उसको पट्टा अराज़ी करार देकर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। मैं कलंदर शाह क़ब्रिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ बक़ा के लिए अरसे दराज से जद्दोजहद में शामिल और इस जद्दोजहद की क़यादत करने वाले जनाब ख्वाजा फयाज़ुद्दीन नूर पाशा साहब के पास मौजूद हूँ। आइए मौजूदा हालात में जो क़ब्रिस्तान की अराज़ी पर मकान बनाने का मसला दरपेश है, इसके मुताल्लिक़ हक़ाइक़ नूर पाशा साहब से जानने की कोशिश करते हैं। पाशा बताइए कि जो क़ब्रिस्तान की अराज़ी पर मकान बनाने का जो मसला फ़िलहाल दरपेश है, उसके मुताल्लिक़ आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा फयाज़ुद्दीन उर्फ़ अनवर पाशा है। ये कलंदर शाह क़ब्रिस्तान गणेश नगर पॉलिटेक्निक एरिया में है। ये बहुत पुराना क़दीम क़ब्रिस्तान है, 250 साल 300 साल। इस क़ब्रिस्तान में ज़माने दराज से लोग, वहाँ के अतराफ़ के लोग, कुछ ख़बरों को मिस्मार करते हुए, प्लाटिंग करते हुए फ़रोख्त किया जा रहा है। कई मरतबा हम इसमें हुकूमत की तरफ, तहसील ऑफिस को और पुलिस की तरफ तवज्जो दिलाई, इसके बावजूद भी कोई हमें आज तक उस पर कोई चीज़ हासिल ना हो सकी। ये हाल में क़ब्रिस्तान 764/2 जो बाज़ाब्ता गज़ट में, गवर्नमेंट गज़ट में है, वो उसका रकबा जुमला 4.5 एकड़ है। उस क़ब्रिस्तान में रोड साइड पे, बिल्कुल रोड के बाजू में ख़बरों को मिस्मार करके एक नरेंद्र नामी लोकल आदमी वहाँ का ख़बरों को मिस्मार करके, प्लाट करके इसको फ़रोख्त करता जा रहा है। और उनके नाम पे कई मरतबा पुलिस में दरख्वास्त भी दी जा चुकी है। फिर हाल में गुज़िश्ता हफ्ते का वाक़या है और जून में भी हमने इसको दरख्वास्त दी थी पुलिस स्टेशन में और सर्कल इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ पे दौरा भी किया। उसके बाद उसको रोक लगाई थी। उसके बाद वो शख्स म्युनिसिपल महबूब नगर में परमिशन के लिए दरख्वास्त देकर म्युनिसिपालिटी के ज़रिए वहाँ पे मकान बनाने का 65 गज पे इजाज़तनामा हासिल किया और 4 दिन पहले पुलिस स्टेशन रुजू हुआ और उसके पास रजिस्ट्रेशन के कागज़ात 2014 में रजिस्ट्री कराई गई। वो भी जबकि गज़ट में क़ब्रिस्तान की ज़मीन शाये होके है और क़ब्रिस्तान की ज़मीन है, 250 साल पुराना क़ब्रिस्तान है। गवर्नमेंट गज़ट में रहने के बावजूद सब रजिस्ट्रार ने इसकी रजिस्ट्री की। ये हालात महबूब नगर में चल रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि ऐसे चीज़ों पे इमीडिएटली एक्शन लेकर जो लोग ये काम कर रहे हैं, अक़ीदे की चीज़ को ख़राब करके, जो क़ानून को अपने हाथ में लेते हुए मुसलमानों के क़ब्रिस्तान को प्लाटिंग में तब्दील करके फ़रोख्त किया जा रहा है, इन पर
हुकूमत और पुलिस इमीडिएटली उस पर एक्शन लेकर उनको अरेस्ट किया जाए और उनको क़ानून के शिकंजे में लाया जाए। आपका हुकूमत से तो मुतालबा है, लेकिन आप खुद आपकी कमेटी इसके मुताल्लिक़ क्या करेगी, क्या इक़दाम आप करेंगे? अभी इन हालात में हम इंशाअल्लाह कल हमारे मिनिस्टर साहब महबूब नगर श्रीनिवास गौड़ साहब से भी रुजू होंगे और कलेक्टर से भी रुजू होंगे। मुकामी कायदीन को साथ लेकर हम है सो कि इसके ऊपर हमारे एतराज़ात हुकूमत के सामने लाएंगे, लाकर म्यूनसिपाल्टी से जो इनको इजाज़तनामा दिया गया है इमीडिएटली उसको मनसूख किया जाए और जो शख्स इसको फ़रोख्त करने की गलती किया है उसको इमीडिएट पुलिस उसको अरेस्ट करे और उस पर क़ानूनन चाराजोई करे। और रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सब रजिस्ट्रार पर भी हुकूमत को चाहिए हमारी शिकायत के बाद उस पर मुकदमा दर्ज करके इस पर एक्शन लेके उसे सस्पेंड किया जाए। इस तरीक़े से अगर नहीं किया गया तो फिर हमारे ख़बरस्तानों की हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये लोग जो लोगों को धोखा देकर प्लाटिंग करके बेचने वाले हैं, इन सब की हिम्मतें और बढ़ती चले जाएंगी। हमारी हुकूमत से मुतालबा है और म्यूनसिपल कमिश्नर से और कलेक्टर से और तहसीलदार से पुलिस से इमीडिएट ही इस पर तवज्जो दें और इस पर केस बुक करें और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाएँ। मुसलमानों से, तंजीमों से, कायदीन से मेरी अपील है कि इसमें सब साथ देकर अपने अक़ीदे की, अपने मज़हब के, हमारी चीज़ों की हिफाजत के लिए आगे आएँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हम सब एक होकर काम करेंगे तो हमारे ख़बरस्तानों की हिफाजत होगी। और इस हाल में और भी मैं हमारे लोकल कायदीन से अपील करना चाहता हूँ कि आज के हालात में हमारे पास ख़बरस्तानों की जगह ख़त्म हो चुकी है। हमको शहर के बिल्कुल बाहर पिरलामारी रोड पर ले आकर मुसलमान लोगों को दफन कर रहे हैं। इन हालात में मुकामी कायदीन सब खामोश बैठे हुए हैं, जबकि हुकूमत, हमारे मिनिस्टर साहब हमको ख़बरस्तानों के लिए 15 एकड़ ज़मीन दे चुके हैं। उसको हासिल करके उसकी बाउंड्री बनाकर उसको है सो के एक शक्ल देकर अगर काम करे तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं मुकामी कायदीन से भी अपील करता हूँ इस पर तवज्जो दें और आगे आएँ। और हमेशा से सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल वाले मुसलमानों के मसाइल को और ख़ासकर ये हमारे ख़बरस्तान जो क़दीम ख़बरस्तान है इसके मसले को हमेशा अवाम में उजागर करके हुकूमत की नज़र में लाकर हुकूमत से है सो कि इसके मुतालबात को मनवाने की हमेशा कोशिश की। लिहाजा मैं इस चैनल वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एंकर साहब का और सभी लोगों का, जो भी लोग इसमें शरीक हैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने देखा कि ख़बरस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की और बक़ा के लिए जो जदोजहद करने वाली कमेटी है उसके कायदीन ने खुला इल्ज़ाम आयद किया है कि सरकारी महकमे खुद इस अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश वालों की मदद कर रहे हैं और महकमा रजिस्ट्रेशन जिसके पास ये वाज़ेह रिकॉर्ड होता है कि कौन सी ज़मीन वक्फ़ है, कौन सी ज़मीन वक्फ़ नहीं है, उसके बावजूद उसी जो सर्वे नंबर पर वक्फ़ जायदाद का गज़ट जारी है वो उसी सर्वे नंबर पर महकमा रजिस्ट्रेशन की तरफ से रजिस्ट्री की जा रही है और महकमा बल्दिया की जानिब से भी उसी सर्वे नंबर पर जो है सो मकानात बनाने की इजाज़त दी जा रही है। तो ये बहुत मुजरिमाना ग़फलत है इन महकमा जात की और महकमा रेवेन्यू में भी इस अराज़ी की जो रिकॉर्ड्स है उसमें खर्दबर्द करने की कोशिश की जा रही है। इल्ज़ाम आपने सुना। नाज़रीन, अब इस ख़बरस्तान की बक़ा के लिए उन कायदीन के लिए सवाल निशान हैं जो अपने आप को आज बरसर इक़्तिदार जमात के क़रीब बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपना असर रसूख ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए सवाल निशान है और ये सवाल निशान है उनके लिए जो इस शहर के मुसलमान हैं। अगर अब उठकर इस ख़बरस्तान की हिफाजत का इंतज़ाम नहीं किया गया तो फिर इस ख़बरस्तान को एक पट्टा राजी में तब्दील करने की कोशिश कामयाब हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट तौहीद के साथ मैं मोहम्मद तक़ी, सिटी न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।